Start. So I welcome all of you for tonight's program. So tonight we have with us Kollol Prabhu, Kollol Bera Prabhu. Kollol Prabhu actually passed out from Jadavpur University, Instrumentation Department. He is working in Indian Railways in Mumbai, Western Railway Division of Indian Railways, and he is looking after the electrical division in the electrical matters. He is in that division in Western Railways, and he stays in Mumbai along with his family. He has a small kid. Recently went to his son's Annaprashan ceremony also. So he is practicing spiritual life. When he was present here, he was very nicely practicing spiritual life, and after pass out, and then in his married life also, he is practicing spiritual life. He is initiated devotee. His initiated name is Keshav Brajapati Prabhu, right? Keshav Brajapati Prabhu. So 2024 he got initiation, right? 24, no? So we are very thankful to Prabhuji. So he is coming from long distance. Tomorrow or day after tomorrow he will leave for Mumbai. So he is giving time to all of you and us. He has come after a long time to Chingrihata. So we thank him for coming here, and he will share a very valuable seminar with you on spiritual life and ambition. So प्लीज़ हेयर बहुत अच्छे से सुनिए तो और क्वेश्चंस पूछिए एट द एंड. तो हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत ग्रेटफुल है प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी इधर पे आए हम लोग के लिए, आप लोग के लिए और हम लोग के लिए टाइम देने के लिए. सो हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे. एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं सब लोग एक साथ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you all of you. So thank you all of you for having me today. Today I will be sharing some of my life experiences, some of my life choices at the end of this seminar. Think of it as a এটা অফ করে দিতে পারো. So anyways, think of it as a informal discussion between all of us. So today's topic is ambition and spirituality. মাইকটা কি বন্ধ করে দেবো? মাইকটা থাক, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? থাক. So today's topic is ambition and spirituality. একটু এগিয়ে এসো, আমি যেহেতু খালি গলায় বলছি একটু এগিয়ে এসো. So how many of you heard your friends, colleagues or family members saying, अरे अभी से क्यों हरे कृष्णा कर रहा है, क्या क्या ज़रूरत था, हाँ अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है. How many of you heard such type of statements from your family members or friend circle? Because I have heard during my time. How many of you heard such type of statements? Yes, it is very common. 95%. 95%, yeah.
So it is very common to hear such kind of statements from your, near and dear ones, because this is not a normal state of life that they have gone through, and you are some special souls that have chosen this path. So coming back to this topic, what do you think? Can ambition go hand in hand with spirituality? What are your views? I want to hear some of your viewpoint. What are your views? Do you think ambition and spirituality can go hand in hand, or there is a disbalance between the two? Who would like to answer? Anyone? जहाँ मने होच्छे जैसे भी आ रहा है मन में बोल सकते हैं आप। नहीं ब्रो, मुझे लगता है कि नहीं, ये करेंगे थोड़ा वो थोड़ा वीक हो जाएगा, ये करेंगे तो वो थोड़ा वो वीक हो जाएगा। किसको किसको ऐसा लगता है कि दोनों बैलेंस मुश्किल है दोनों में करना? किसको किसको ये लगता है कि दोनों में बैलेंस करना मुश्किल है? अच्छा, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। अच्छा, तो बाकी सबको लग रहा है कि बैलेंस करना पॉसिबल है, कि बीच में सब लटक रहे सब। ज़्यादा हो गया मेंटल अभी थोड़ा होने लगा पहले। अच्छा, तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो क्या होता है ना, एम्बिशन और स्पिरिचुअल लाइफ, ये जो चीज़ है, ये बैलेंस करना हम लोग को सीखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि अरे जैसे इसमें टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे अभी आप कोई तो बोल रहा था एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम टाइम है, मंडे से एग्ज़ाम है, तो जैसे आप लोग को अभी थोड़ा लग रहा होगा कि इसको क्यों अभी कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाई करना चाहिए था। वाई आर वेस्टिंग, आई एम पुटिंग द वर्ड वेस्टिंग टाइम, बट मेनी ऑफ यू हैव, मुझे लगता है मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड राइट नाउ दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। ये फंडामेंटल है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आगे जो बोलूँगा वो रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो सिंस वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू नर्चर दैट सोल, और बेसिकली टू नर्चर अस, बिकॉज वी आर सोल। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो हम लोग अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, राइट? ठीक उसी तरह से जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम लोग अपना जो डेजिग्नेटेड जो चैंटिंग राउंड्स है ये कंप्लीट करते हैं, जो साधना कंप्लीट करते हैं, तो वी आर फीडिंग द सोल। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्यों फीड करे प्रभु, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, है कि नहीं? मैं तो पहले भी ठीक था, अभी क्या ज़रूरत आ पड़ा कि अभी फिट करना है? बाद में भी तो फिट कर सकते हैं 4th ईयर के बाद, है कि नहीं? एक्चुअली दिस इज द कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम। मैं पर्सनली आपको बताऊं, जेयू में कोई था बोल रहा था जेयू में, अच्छा तो आपको सुनने में होगा या जो भी है आप सुनेंगे बाद में, हॉस्टल लाइफ जो था ना, हालांकि मैं पर्सनली हॉस्टल में नहीं था, लेकिन बहुत मेरे दोस्तों से सुना था। तो हॉस्टल में रह के ये जो डिसिप्लिन जो लाइफ है ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि मैं गुरुकुलम से कनेक्टेड था और क्योंकि मैं इधर स्टे कर रहा था, तो आई वॉज एबल टू डेवलप not just a good character, but also I was able to spiritualize my life। और spiritualize से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद मैं जितने भी डिसीजंस लिए हर एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे, वो मैं मेरे ध्यान में था कि मैं ये जो, क्योंकि अभी मेरा इंटेलेक्ट जो है अभी और रिफाइंड हो चुका था। कैसे? प्रभुपाद के बुक्स रीड करके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि ये जो चीज़ है, मैं कोई भी अगर जैसे पॉइंट ऑफ लाइफ पे अगर मुझे इधर जाना पड़े या इधर जाना पड़े,
तो मैं पहले अपने इंटेलेक्ट से उसको पहले सोचता था कि क्या करना मेरे लिए सही रहेगा फ्रॉम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसमें मैं बैलेंस लाने की कोशिश करता था, विद द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर्स। ठीक है, अब मैं उसमें आता हूँ, इसमें मैं बाद में चर्चा करूँगा मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था। सो एम्बिशन में क्या होता है, व्हेन यू आर now from this point onwards, when I am using the term ambition, please do note I am stating over ambition, because ambition is not bad. आपको ये हम we need some food, shelter, to maintain our body, and for that we need a good career. We need to earn money, we need a good career, and for that we have to have some ambition or desire, right? But मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ओवर एम्बिशन जो है ये आपके लिए, आपके सोल के लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? ओवर एंडिवर से क्या होता है, अब आप पूछेंगे अभी ओवर एंडिवर से तो बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब पे आके क्लास देते हैं कि मतलब आप अगर ठान लिए तो आप कर सकते हैं। इस मूवी में आऊँगा, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, कितना कर सकते हैं हम लोग। तो ओवर एम्बिशन जो है ये गलत है, क्योंकि देखिए कृष्णा हैज़ क्रिएटेड ऑल द लिविंग एंटिटीज, इवन अस। एक हाथी, इसका इतना बड़ा शरीर है, बिना कुछ परिश्रम किए उसको मतलब टन उसको मतलब वेजिटेशन उसको मिल रहा है एक दिन में, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है। इज ही डूइंग सम हार्ड वर्क टू गेन दैट फूड? इज ही गोइंग टू ऑफिस? नो। इज ही डूइंग वर्क फॉर 10-12 आवर्स? नो। फिर भी उसको मिल रहा है। तो भगवान ऐसी सृष्टि किए हैं कि सबको बिना ओवर एंडिवर के ही मेंटेन हो सकता है। इतना आपको पहले समझने पड़ेंगे। ये चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, इसलिए प्रभु मुझे बोले कि आप थोड़ा इंस्पायर करो लोगों को। मैं बाद में आऊँगा उसमें। तो एम्बिशन इज़ नॉट बैड, बट ओवर एम्बिशन इज़ बैड। ठीक है, तो आप हिरण्यकशिपु का पास्ट टाइम सुने हैं? जस्ट सी हिरण्यकशिपु हियर ऑल दी কি বলবো, all the materialistic opulence in his life, but see Prahlada's one statement made him anxious, and then he fell down. He was killed by Nishingadevi. So टोल्स्टॉय का एक कहानी था, मुझे शायद आप लोग पढ़े होंगे। उसमें ये था कि एक बच्चा था, एक लड़का था, उसको ऐसा बोला गया था कि आप जो है सुबह एक फिक्स टाइम पे आप निकलिए, आपको दौड़ना है, दौड़ के एक जगह पे एक स्टिक रख के आना है, फिर आपको वापस शाम को 6 बजे तक पहुंचना है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतना लैंड आपका हो जाएगा। तो वो लड़का बहुत खुश हो गया। मैं तो फिर ऐसे तो बहुत जगह मैं मेरे नाम पे कर सकता हूँ। तो पहले दिन वो दौड़ा, वापस आ गया, उतना लैंड उसका हो गया। ठीक है, अगला दिन उसको सूझा क्यों ना मैं थोड़ा तेज भागूँ आज, तो मैं ज़्यादा लैंड कवर कर सकता हूँ। तो उसने आज क्या किया, थोड़ा तेज भागा। जब उस पॉइंट पे पहुंचा जहाँ तक वो पहले दिन पहुंचा था, उसको लगा कल तो मैं ऐसे ही भाग के 6 बजे तक पहुंच गया था, तो आज थोड़ा और आगे जाता हूँ, फिर तेज भागूंगा तो और थोड़ा लैंड मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसने और थोड़ा तेज भागा, फिर उसको लगा कि और थोड़ा सा तो और तेज भागा। उसको लग रहा है आज अरे 6 तो बहुत टाइम है, अभी पहुंच ही जाऊंगा मैं।
लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो समझ नहीं पाया कि कितना भी वो स्पीड पकड़ ले रिटर्न पाथ में, वो पहुंच नहीं सकता था। अगर वापस पहुंचेगा 6 बजे तक तो ही उसका लैंड जितना वो कवर किया है वो मिल पाएगा। आते आते क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि इतना तेज भाग रहा था उसका शरीर ले नहीं पाया। तो अभी इसमें मेरा बोलने का मेरा ये है कि पहला दिन वो उसका एम्बिशन था, उसका एंडीवर था, दूसरा दिन उसका ओवर एंडीवर था जो उसके लिए सही साबित नहीं हुआ। तो ये मुझे समझने पड़ेंगे कहाँ तक एंडीवर है और ठीक किस लेवल के बाद मेरा ओवर एंडीवर हो जा रहा है, ये मुझे समझने पड़ेंगे। और आप देखोगे जब भी आप ओवर एंडीवर करते हैं, वेन एवर वी आर गिविंग ओवर एंडीवर टू एनीथिंग, टू एनी एक्टिविटी, स्पेसिफिकली इन योर केस स्टडीज, इसमें क्या होता है, मटेरियल हैंकरिंग बढ़ता है। जैसे मैं अभी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आपको मालूम है कि इतना मैं पढ़ूंगा ये सिलेबस कवर हो जाएगा, तो इट्स ओके फॉर मी नाउ। आप क्या किए, आप सेकेंड ईयर का ही पढ़ना चालू कर लिए। क्यों? दोस्तों को थोड़ा दिखाना है कि हाँ ये टॉपिक तो मेरे को भी आता है, ये तो अभी किसी को पता ही नहीं है। ये ओवर एंडीवर हो गया आपके लिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो जरूरी नहीं था फिर भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट तो वही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो फर्स्ट डे के सिलेबस ही आने वाला है, और क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके क्योंकि समय उसमें भी लगाया था और उससे क्वेश्चन आया नहीं, तो हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन छूट जाए ये सिलेबस से, क्योंकि आपने उसको भी कवर कर गए थे आप, है कि नहीं? तो ये सेंस में ओवर एंडेवर गलत है। इससे क्या होता है, ग्रीड बढ़ता है। ओवर एंडेवर not only give rise to material hankering but also greed. अब आप बोलोगे ग्रीड कैसे? देखिए, दुर्योधन जो था पांडवों को एक सुई के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। दुर्योधन को बोला गया था कि आप जो है 5 गांव 5 भाइयों को दे दीजिए, फिर आप बाकी राज्यों पे आप राज कीजिए, है कि नहीं? लेकिन उसको उतना भी वो नहीं था, दिया नहीं। तो ये ग्रीड, उसने ओवर एंडीवर किया, फिर उसमें ग्रीड पैदा हो गया उसके मन में, तो वो उतना भी जमीन उसको नहीं दिया। अंत में क्या हुआ, उसका पतन हो गया, है ना? अभी आते हैं जो हॉट टॉपिक पे, मैं इसलिए इसको डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये बहुत मतलब लगता है कि डेस्टिनी, अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा है तो मैं तो प्रभु ओवर एंडेवर करूँगा ही, है कि नहीं? तो डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, आपने ये क्लास प्रभु ने किया है क्या कभी? नहीं ना? तो डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। डेस्टिनी क्या है? दो तरह के कर्म होते हैं। एक है अप्रारब्ध, जो आपके प्रीवियस लाइफ में आपने जो पाप पुण्य किए हैं उसके अनुसार आपको जो सिचुएशन मिला है, अभी सर्कमस्टेंस, आप जिस फैमिली में जन्म लिए हो, आपको आसपास का जो एनवायरनमेंट कैसा मिला है, ये है प्रारब्ध कर्म, जो आपको मिल गया है पिछले लाइफ के डीड्स के अनुसार। जो आप अभी करने वाले हैं वो आपके फ्री विल के अनुसार होगा। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका आप जो है रिजल्ट आप भुगतेंगे ये लाइफ में। और ये भुगतते भुगतते आप फ्री विल यूज करके आप जो भी एक्शंस लेंगे वो क्रिएट करेगा आपका प्रारब्ध कर्म, जो आपके बाद में आएगा उसका रिजल्ट। तो अगर आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है पोस्ट मिलेगा, जॉब, तो आपको बिना ओवर एंडीवर किए ही मिलेगा, ऐसा मेरा देखा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम पूरा
साल भर कुछ नहीं पढ़े फिर भी आपको जॉब मिल गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है तो आप बैठ ही नहीं सकते चुपचाप बिना पढ़े। समझ में आ रहा है मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि ओवर एंडेवर से वो आपको चीज़ मिल जाएगा अगर आपका डेस्टिनी में नहीं हो तो। और अगर आपका डेस्टिनी में है, उसके बाद आप जो फ्री विल यूज़ करेंगे, वहाँ पे मेरा पॉइंट आता है कि आपको अगर लाइफ में अगर बैलेंस नहीं आप करते हैं, शास्त्रिक अगर बैकिंग नहीं रहेगा जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे गुरुकुल में, तो फिर आप जो फ्री विल का गलत इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो प्रारब्ध कर्म जो होगा वो आप ठीक ठाक मतलब सही तरीका का प्रारब्ध आप कर नहीं पाएंगे। ये आपको सोचना है। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रभु ठीक है, मैं ओवर एंडेवर नहीं करता, मैं एंडेवर करूंगा जितना मुझे लग रहा है कि हाँ इससे हो जाएगा, मैं उतना करूंगा। तो फिर आप तो फिर जो है सबको बोल रहे हैं कि अरे एकदम लेजी बन जाओ, ज़्यादा कुछ मत करो। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर मेरे पास टाइम है ओवर एंडेवर करने के लिए, क्यों ना करो, है कि नहीं? मुझे अगर माइक्रोसॉफ्ट के जॉब के लिए अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं गूगल के लिए क्यों ना करूँ, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे जो चीज़ आता है कि मैं लेज़ी होने के लिए नहीं बोल रहा, आपको एंडेवर तो करना ही है, लेकिन लेज़ी होने का जो है भगवान भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ये मैं तुमको अभी शिक्षा दिया, अभी उसने क्या किया, वो लेज़ी होकर बैठ गया क्या? उसने युद्ध किया ना। तो भगवान लेज़ी होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान यहाँ तक कि भागवतम में एक श्लोक है, अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो मैं बाद में उसका श्लोक का नाम बता दूंगा। उसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि हर एक को अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ पालन करने हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ अभी क्या है? पढ़ाई करना, अभी करियर के लिए सोचना। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपको भगवान ने ये शरीर दिया है, तो ये शरीर का भी मेंटेन करने पड़ेंगे और खुद को भी मेंटेन करने पड़ेंगे। खुद को बोले तो सोल को। और सोल को मेंटेन करने का जो चीज़ है ये आपका कॉलेज नहीं सिखा पाएगा। कॉलेज आपको ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए सिखा सकता है, लेकिन सोल को नहीं सिखा सकता कैसे मेंटेन करना है। तो वो नॉलेज आपको यहीं पे मिलेंगे गुरुकुलम से, प्रभुपाद की बुक से, जो सीनियर जो यहाँ पे डिवोटीज रहते हैं उनके गाइडेंस से, है ना। फिर देखिए ये जो फिर आप कितना एंजॉय कर पाएंगे। अगर कोई ओवर एंडेवर करता भी है कि नहीं प्रभु मुझे तो 50,000 का सैलरी वाला मुझे जॉब मिल रहा था, क्यों ना मैं थोड़ा ओवर एंडेवर करके मैं 1 लाख का जॉब ले लूँ, है कि नहीं। पहले आप अगर 4 रोटी खा रहे थे, बाद में शायद 4 ही रोटी खाएंगे, है कि नहीं, कि 8 रोटी खाएंगे अभी। हाँ ब्रो, 4 ही खाएंगे, जितना आपका सामर्थ्य है पचाने का उतना ही खाएंगे, है कि नहीं। देखिए ये हमको सोचने पड़ेंगे। जब भी आप ओवर एंडेवर फिर कर रहे हैं, फिर आपका क्या होगा, ग्रीड जन्मेगा कि मैं फिर 1 लाख पे ही क्यों रुकूं, 2 लाख क्यों नहीं, चाहे मेरा भक्ति भाड़ में जाए, मैं अभी 2 लाख पे भी क्यों रुकूं, मुझे उसके आगे भी देखने पड़ेंगे। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये साइकिल ना कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कभी सेटिस्फाई, आपका अब क्यों भक्ति कर रहे हैं, सिंपल सी बात, एकदम सब छोड़िए। भक्ति कर रहे हैं आप, जो है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। आपका जो है
ये तो मतलब कॉरोलरी इफेक्ट हो गया। मेन पर्पस हम लोग आप लोग चैंटिंग क्यों करते हैं? चैंटिंग का मतलब पता है? जो आप लोग हरे कृष्णा जो जाप करते हैं माले पे, इसका मतलब क्या है? अल्टीमेट गोल है कि टू कनेक्ट विथ कृष्णा इन द लविंग सर्विस, इन इज लविंग सर्विस। ये हम लोग का गोल है। ये आपको कहीं भी कितना भी आप कर लो, ये मेन चीज़ है। आप बोलेंगे प्रभु थोड़ा मीठा मीठा करके बोलिए, थोड़ा नहीं, ये ट्रूथ है। हमको वी हैव टू रिवाइव दैट लॉस्ट कनेक्शन। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ दें। मुझे भी ये लगता था जब शुरू में, मैं जब हॉस्टल में था, हॉस्टल मतलब जेई हॉस्टल नहीं, प्राइवेट एक हॉस्टल में रहता था मैं, तो तब प्रेमानंद प्रभु जानते हैं सभी, प्रेमानंद प्रभु तब जाते थे, तो तभी मेरा वो मतलब एक नोशन था कि अरे ये जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब मेरे को सारे चीज़ जो है अभी छोड़ने पड़ेंगे। तो प्रभु से बहुत पहले बहस करता था कि प्रभु आके बोले कि आप आओ गुरुकुलम में सबके साथ रहो, प्रैक्टिस करो ये लाइफ। मैं तब बोलता था कि प्रभु यहाँ आऊँगा तो मेरे पढ़ाई का क्या होगा, है ना? तो मुझे वो आइडिया था कि भक्ति करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा, ये मेरे को आइडिया था। और फिर मुझे लगता था कि भक्ति करेंगे तो थोड़ा सोशली बैकवर्ड हो जाएंगे, आसपास की दुनिया का खबर उतना नहीं रहेगा। तो मैं प्रभु को क्लियरली बोला था, प्रभु ये मेरा कंसर्न है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। फिर प्रभु बोले आप एक बार आके तो देखो। तो मैं एक बार मतलब साहस जुगा के 1 महीने में रुका था पहले, आने से पहले। तभी मुझे लगा कि मेरा जो सोच था वो कितना गलत था। अभी आप लोग बोले, आप लोगों को जो पढ़ाई का जो टाइम मिल रहा है, मैं बाकी लोगों से तो बोल नहीं सकता, उनको तो नहीं मिल पाता अगर वो हॉस्टल में रहता तो। पढ़ने ही नहीं देंगे लड़के लोग, ऐसे हैं सब। और यहाँ पे आपके सीनियर्स लोग कितना हेल्पफुल यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ कि एम्बिशन जो है आप रखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एम्बिशन शुड बी कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी। मेरा कहने का ये मतलब। और सबको ये दिमाग में बैठा लीजिए, डेस्टिनी है सबका। जब हम लोग जन्म लिए थे तभी एक डेस्टिनी लिखा गया था। हमारे जो प्रारब्ध कर्म था वो ऑलरेडी तय है। आप ये मत सोचिए कि आप भक्ति कर रहे हैं तो वो प्रारब्ध नहीं आएगा, लेकिन भक्ति करने से आपको वो सिचुएशन में टैकल करते हैं वो साहस मिलेगा, और वो नॉलेज भी मिलेगा, वो इंटेलेक्ट भी मिलेगा, ताकि उस सिचुएशन में जो बाहर के लोग छोड़ देते हैं वो तो कि अरे अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ डिसीजन लेके आप निकल जाएंगे वहाँ से, उस सिचुएशन से। ये पावर आपको मिलेंगे। इतना मैं मेरे खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन है ऐसे सिचुएशन। बाहर के लोग होंगे तो छोड़ ही देंगे ऐसा। तो सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा था, सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी सीन एज लैक ऑफ एम्बिशन। सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी सीन एज लैक ऑफ एम्बिशन। सेटिस्फैक्शन जैसे हम लोग जो एम्बिशन हम लोग रख रहे हैं, उसका मेन पर्पस ये कि हम लोग कैसे सेटिस्फाई रहे। आप लोग एम्बिशन जो है कि मैं नौकरी करूँगा, उसका मेन मकसद क्या है? कुछ जो है पैसा फैमिली को दे के या खुद जो है यूज़ करके मैं सेटिस्फाई रहूँ। अगर मुझे इतना मिल गया, मुझे और क्या चाहिए आप बताइए। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो लिख के रखा था कि
ठीक है प्रभु, आप तो बोल रहे हैं सेटिस्फाइड हो जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ, ओवर एंडिवर मत करो, तो आप क्या हिंट देना है कि मैं साधु बन जाऊं? क्योंकि साधु लोग सेटिस्फाइड रहते ही हैं, मुझे पता है। बाहर के काम में कुछ नहीं रहते, मन में सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आप क्या हिंट देना कि मैं साधु बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। साधु जो बनना, देखिए, मेनी ऑफ यू विल चूज सम करियर। कोई आईटी इंजीनियर बनेगा, कोई कोर फील्ड्स में जाएंगे, है ना। कितने लोग प्रोफेसर बनते हैं, या बताओ, इंजीनियरिंग पास आउट होके कितने लोग प्रोफेसर बनते हैं? मतलब एकेडमिक्स में ही रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसे ही आप एनालॉजी साधु में लगाइए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसका साइकोफिजिकल नेचर वैसे रहते हैं कि वो ये पाथ को चूज करते हैं। बाकी लोग मेरे तरह जो है मैरिड लाइफ में जाएंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मेन एम होना चाहिए कि मैं ये भक्ति को ना छोड़ूं, और ये भक्ति जो है यही मेरे को आगे बढ़ने का ये साहस देगा। अभी देखिए, मैं 2014 में, अब जैसे आप लोग डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड चालू किए थे, DIS डिस्कवर योरसेल्फ, तो मैं 2014 में प्रभु आए थे हमारे हॉस्टल में, तो 2014 से मैं जुड़ा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने कोशिश किया कि जो मुझे अभी वैल्यू मिल रहा है वो मेरे लाइफ को चेंज कर रहा है इन अ गुड वे, इसीलिए मैं इसको मेंटेन रखा। बहुत कोई तब मैंने इवन फैमिली मेम्बर्स भी तब बोलते थे, अरे क्या कर रहा है, मतलब कुछ हट के कर रहा हूँ ना। तो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सुनाते थे, फ्रेंड्स लोग तो बोलते थे, उनका काम ही है बोलना। लेकिन क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा चीज़ मिल रहा है जो खुद को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी जो है इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एम्बिशन से ये कोलाइड नहीं करता, बल्कि ये एम्बिशन को सप्लीमेंट करता है। आपका एम्बिशन वैसे ही उसके आसपास क्रिएट होगा कि आप सोचेंगे, अच्छा मेरा ये मैं अगर नौकरी ढूंढूंगा तो मैं साथ में भक्ति भी कर सकता हूँ, साथ में सब कुछ पॉसिबल है, तो आप फिर डिसीजन उस हिसाब से लेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो है भगवान ने दुनिया को बनाया है, और भगवान ही सबको मेंटेन कर रहे हैं, तो भगवान मेंटेन करेंगे, चाहे आप एंडिवर करो चाहे आप ओवर एंडिवर करो। अब उसमें इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वही है जो क्या समझेगा कि मैं अगर एंडिवर करने पे भी मेरा मेंटेन हो रहा है, ओवर एंडिवर करके भी मेंटेन हो रहा है, लेकिन साथ में कुछ दुख भी आ रहे हैं, तो मैं क्यों ओवर एंडिवर करूं? ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा। और एक चीज बोलना था आपको। अभी मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे। तो शुरू में अभी देखिए, मेरे क्लास में मैं टॉपर था, और टॉपर होने का एक दिक्कत ये है कि आपको वो लेवल मेंटेन रखने के लिए थोड़ा ओवर एंडेवर करना पड़ता है, और उससे क्या होता था, एक खामखा एक एंग्जाइटी रहता था, सेकंड हो जाऊंगा तो,
ये साल और ये सेमिस्टर में मैं सेकंड पोजीशन में आ गया था। सच में बोलो, मैं कोई मतलब कोई आई एम नॉट अशेम्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं टॉपर था तो अलग से एक एंग्जाइटी काम करता था कि अगले सेम में मैं सेकंड आ जाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पड़ता था। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए आप बोलेंगे प्रभु आपने तो खुद ही ओवर एंड्योर कर दिया, अब हम लोग को क्या समझा रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि मैंने किया है, मैंने देखा है और उसका रिजल्ट भी उतना आता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है कि एंडेवर काफ़ी है इंजीनियरिंग में, एंडेवर काफ़ी है। और ये गुरुकुलम में जो आपको बोल रहा था मैं, जो जर्नी है मेरा, मैं पहले बहुत नाटक किया था, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा, बैकडेटेड हो जाऊंगा, मैं तो आउटडेटेड हो जाऊंगा, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिले रहेगा वॉइस में, ये गुरुकुलम में रह के। तो तभी प्रभु ने मुझे बहुत समझाया था, तभी बहुत शास्त्र से एग्जाम्पल मुझे दिया था प्रभु ने। हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था, फिर भी मैं आके एक बार देखना चाह रहा था कि कितना सच्चाई है इसमें। तो जब यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि एक्चुअल जो बैलेंस जो है, पहले भी ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम की कमी था, हमेशा पढ़ ही रहा हूँ, बहुत फ्री टाइम था, लेकिन उसको वेस्ट कर रहा था मैं, वो पहले पता नहीं चल रहा था मेरे को। जब यहाँ पे आया तब मुझे मालूम पड़ा कि वो टाइम तो मैं वेस्ट कर रहा था, दुनिया भर के ये सीरीज़ वो सब, तब वो सीरीज़ नहीं था, तो वो सब दुनिया भर के उसमें टाइम वेस्ट करता था। फिर जब यहाँ आया उसको मैं कंस्ट्रक्टिवली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में मैं लगाया, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ कि आपका जो इंटेलेक्ट है ना, वो धीरे धीरे शार्पन होता रहता है। जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका इंटेलेक्ट धीरे धीरे शार्पेंड होता है। तो आप कभी भी कोई कुछ भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे डिसीजंस लेना हो तो आप सही तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो ये चीज़ है। तो एम्बिशन एंड स्पिरिचुअलिटी ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है आपस में, ये सप्लीमेंट्री। तो आप कभी ये ना सोचें कि जो है गुरुकुलम में मैं रहूँगा तो जो है मतलब कैरियर ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, जो भी है बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लेकिन ये आप धीरे धीरे, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आपको कन्विंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि आपने अभी देखा नहीं है सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाला टाइम, मैंने देखा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ रहेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे तो आप खुद ही आपके फ्रेंड से कंपेयर करेंगे 4 साल बाद कि आप किस पोजीशन में हैं। ये चीज़ है। तो बहुत छोटे में संक्षिप्त में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर आप लोगों से क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि बहुतों का बहुत क्वेश्चन होता है जनरली फर्स्ट ईयर में। तो आप मेरे से पूछो, आपको जो भी जानना है मैं बताऊँगा। खास करके मतलब एम्बिशन रिलेटेड, क्योंकि मैं इसमें था इसलिए बोल रहा हूँ। कोई किसी का कुछ है मतलब तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा ठीक से, टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी कुछ प्रश्न नहीं है? सभी तो आईटी से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईटी से हैं। और आपके मन में क्वेश्चन है तो मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ा और ज़्यादा रहता तो बेटर रहता था?
आपको लगता है? आपको लगता है? अच्छा, आप अभी दिन में कितना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं पढ़ाई में? কলেজ? কলেজ থেকে এসে আর টাইম, কলেজ থেকে এসে সবাই আমরা টায়ার্ড থাকতাম, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে দেখো তোমাদের এখন, আমি আমি একদম फ्रैंकली বলছি, আমাদের সময়তে सभी बांग्ला समझते हैं ना? अच्छा, आप नहीं समझते, ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरे टाइम में हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम लोगों को कॉलेज से आके हॉस्टल्स में जाना पड़ता था टीचिंग सेवा के लिए, मार्केटिंग करना पड़ता था, किचन में हेल्प करने पड़ते थे, क्लीनिंग करने पड़ते थे। हम लोग के टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी तो 2 कुक हैं अभी, तो मार्केटिंग शायद किसी को करने नहीं पड़ते ना। अच्छा, तो हाँ, हम लोग वेसल क्लीनिंग भी करते थे किचन में। कम, खूब कम, हाँ, रेयर कैसे, लेकिन हम लोग का डेली सेवा था, हम लोग का डेली था। तो फिर भी हम लोग टाइम निकाल के, मैं तो मास्टर्स में तब, मैं जब यहाँ गुरुकुल में था तो तब मैं मास्टर्स कर रहा था, फिर भी हम लोग टाइम निकालते थे। मैं आता था शाम को 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आता था, फिर भी जो सेवा था हम लोग करते थे, लेकिन फिर भी 2 घंटे टाइम तो निकाल ले ही लेते थे पढ़ने के लिए, कॉलेज से आके बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही चीज़ बोल रहा था आप लोगों को कि ये बात आपको समझने पड़ेंगे। आपको अभी लगेगा, मुझे भी लगता था कि थोड़ा अगर मैं ज़्यादा पढ़ लेता तो वो नौकरी लग जाता था, या थोड़ा वो पढ़ लेता तो वो वाला नौकरी लग जाता था, ऐसा लगेगा। लेकिन ये एकदम हार्ड ट्रूथ है कि आपके डेस्टिनी में अगर नहीं लिखा है, एकदम मैं रियलाइज फैक्ट बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं कंपनी में मेरा क्या हुआ था। नहीं आएगा आपके हाथ में, आप कितना भी ओवर एंडिवर कर लें। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो आप देख सकते हैं करके, लेकिन ये मेरे टाइम के और भी डिवोटीज हैं, सबको मैं देखा हूँ, ओवर एंडिवर से कुछ नहीं आता। आपको जो मिलने वाला है वो आपके अगर डेस्टिनी में है तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप कम पढ़े। एक मेरे टाइम पे एक डिवोटी था, वो क्या, उसका एग्ज़ाम था कुछ सेमिस्टर नहीं, कुछ इंटरनल कुछ एग्ज़ाम रहता है ना, और तभी कुछ परिक्रमा था हम लोगों का। तो उसका परिक्रमा जाने का बहुत मन था कि सब लोग जा रहे हैं, मैं अकेला, एग्ज़ाम है, ऐसा था। वो कैसे भी करके वो थोड़ा साहस जुटा के परिक्रमा में चला गया। परिक्रमा में चला गया, आके उसके पास पढ़ने के लिए खाली 2 ही दिन टाइम था, और उसके ज़्यादा सिलेबस कवर भी नहीं हुआ था पहले से। तो उसने कैसे भी करके पढ़ के गया, और वही 2 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, लेकिन डेस्टिनी फैक्टर काम करता है। उसके डेस्टिनी में वही था कि तुम कितना भी कम पढ़ो, तुमको वही वहाँ से मिलेंगे तुमको मार्क्स। ये चीज़ है। अब मैं मेरे एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं टॉपर था क्लास में, मैं डींगे नहीं हक रहा हूँ, गोल्ड मेडल भी मिला था मुझे अपना कॉन्वोकेशन में, लेकिन नौकरी जो है ढंग का नहीं मिला था मुझे। एकदम आई एम नॉट अशेम्ड, मैं सबको खुला खुला बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोला ना, मैं बहुत डीपली रियलाइज किया ये चीज़ को, इसलिए आप लोगों को बोल पा रहा हूँ। मैं नौकरी में बैठा था, सब लोग ठीक है, CGPA ठीक है, मार्क्स ठीक है। अभी क्या होता है ना, मेरे को ढंग का नौकरी नहीं मिलता। एक मिला था
हाँ एक आईटी में, तो मैं वो ज्वाइन नहीं किया था। फिर बाद में और भी सारे एग्ज़ाम दिए, लास्ट मोमेंट पे मेरा नहीं होता था। मतलब जैसे जीडी राउंड हो गया या 2-3 राउंड में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके एक कंपनी था, कुछ 17 लाख का पैकेज दिया था बेंगलोर, उसने बुलाया भी था मुझे। सारे जो जर्नी फीस वही कवर किया था, फ्लाइट से आने का जाने का। लास्ट में एक क्वेश्चन से मेरा वो छूट गया, मतलब वो नहीं कर पाया था, तो इसलिए फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे एकदम कंफर्म लग रहा था कि अब तो हो जाएगा, क्योंकि 3 राउंड क्रॉस करके मैं गया था और सिचुएशन से ऐसे लग रहा था फेवरेबल लग रहा था, लेकिन लास्ट राउंड में वो गया मेरा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, डेस्टिनी में अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर डेस्टिनी में है, आप कैसे ना करके आपको मिलेगा ही। अभी आपके आते हैं पढ़ाई के टाइम के ऊपर, तो ये आपको निकालने पड़ेंगे टाइम। आप चाहे कॉलेज में जो रिसेस आवर्स रहते हैं, कितना 1 घंटा रहता है, 50 मिनट रहता है ना, उसमें आप थोड़ा एडजस्ट करो, लाइब्रेरी में रहो। ये मैं करता था कभी कभी, हर दिन तो नहीं हो पाता था, करता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी ये अभी ये हर दिन नहीं होगा आपका, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर दिन आके टायर्ड, हर दिन आप टायर्ड नहीं रहोगे। कभी कभार टायर्ड हो गए तो हो गए, लेकिन ये हर दिन के बाद नहीं हो सकता। तो वैसे भी कभी कभार हम लोग को आके फिर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। ऐसे भी दिन था, कॉलेज में गए, हॉस्टल में गए, पूरा दिन वहीं पे चला गया। तो फिर प्रभु क्या करते थे अगले दिन, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिला नहीं पढ़ने के लिए सही से, तो वो अगले दिन एडजस्ट करते थे कि ठीक है, आप तो मिल नहीं मिला था, आप आज रहने दो, आप दूसरे कोई जाएगा आपको जाएगा। तो हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, भक्ति नहीं छोड़ना है। हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही रेयर चीज़ है, ये गूज़बम्स है, भक्ति नहीं छोड़नी। हमको ये मनुष्य जन्म मिला है और मतलब आप मान के चलो यही लाइफ मेरा लास्ट लाइफ करना है। अभी आपको बहुत ये मतलब ये लगेगा कि अरे अभी तो पढ़ने का टाइम है, ये सब करने का कहाँ टाइम है। लेकिन आप थोड़ा जब मैच्योर होंगे ना, आप फैमिली लाइफ में घुसेंगे या जो भी है आपके, फिर आपको ये धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अब बोलेंगे अब तक तो मेरे को पता ही नहीं था, अभी आप सिखा रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने कुछ ना कुछ पुण्य का काम किए हैं। पुण्य ठीक नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, इसको बोलते हैं सुकृति, यस, इसको सुकृति बोलते हैं, है ना। आपने पिछले करोड़ों जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे सुकृति किए होंगे, तो एक साथ जमा होकर आपको ये अवसर दिया कि आप भगवान हरि का नाम ले पाए, है ना। ये अभी बहुत इजीली मिल रहा है ना, इसलिए हम लोग उसको एसेस नहीं कर पा रहे कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो बहुत कुछ सब कुछ छोड़ पाते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ लेके चलो। आप क्यों नहीं लेके चल सकते? आप पढ़ाई करो, आप भक्ति करो, सबको लेके चलो। क्यों नहीं हो पाएगा? मेरा बोलना ये है, क्यों नहीं हो पाएगा? हम लोग देख रहे हैं, मेरे टाइम में बहुत सारे भक्त थे, अभी सब कोई नौकरी कर रहे हैं। आकाश प्रभु का आप लोग जानते हैं ना, फिर कंपनी खोल लिया, अभी तो बाहर रहते हैं, फॉरेन में, कनाडा में रहते हैं शायद। सब हम लोग वही बैच के थे, सब एक साथ रहते थे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल। और भी बहुत है, जब सब HPCL IOCL में सब नौकरी। अच्छा, IOCL की बात से मेरे को एक ध्यान में आया, ये आप जो ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा था ना, मेरा एक कॉलिग था मेरे एमटेक के टाइम पे, उसने मास्टर्स किया 1 साल गेट की तैयारी करके, गेट आपको पता ही होगा, गेट की तैयारी करके उसने IOCL में ज्वाइन किया। उसका वही एम था पहले से कि मुझे IOCL में जाना है,
तो IOCL उसको मिला, पोस्टिंग मिला कहाँ पता है? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे पानी खरीद के पीना पड़ रहा है और महंगा पानी। आप बताओ, मतलब उसने क्या किया फिर पता है? उसने 1 साल नौकरी किया, उसका ड्रीम जॉब था IOCL में। और हम लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब वही तेल ऑयल की कंपनी में हम लोग का नौकरी ज़्यादा लगता था। हम लोग का मेन मतलब नौकरी है वही है कि ऑयल रिफाइनरीज में काम। तो उसको वही नौकरी मिला था, ड्रीम जॉब, लाखों में सैलरी है उसका। उसने वो छोड़ दिया, छोड़ के 1 साल के बाद छोड़ दिया उसने नौकरी, तंग आके। अभी वो इटली में एक कुछ यूनिवर्सिटी में वो PhD कर रहा है। तो मेरा बोलने का वही है कि भगवान ना क्या क्या करते हैं, आप जब ओवर एंडिवर करते हैं ना, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, भगवान देखते हैं अरे ये उसी के पीछे पड़ा है, मुझे मालूम है ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, लेकिन उसी के पीछे पड़ा है, तो लो तुम लो, अभी तुम ही देखो, अभी भुगतो अभी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग जब सही एंडिवर देते हैं, भगवान हमारे लिए जो सही होता है, भगवान तभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हस्तक्षेप करेंगे जब हम लोग ये स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान के लिए कुछ सेवा करेंगे। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान क्यों आएगा आपका हेल्प करने के लिए? आप ये बताइए। भगवान तो सब सिस्टम बना के रखे हैं, तो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको हेल्प करने के लिए स्पेशली भगवान क्यों आएंगे? तो कभी कभार होता है ना, बहुत जीवात्मा जब बहुत कोशिश करता है एक चीज़ के पीछे, दे देते हैं, ठीक है अभी तुम देखो सही हो या ना। तो ये चीज़ हमको इसलिए बोला जाता है कि ओवर एंडेवर नहीं करना, भगवान को प्रे करना है कि जब भी हम लोग मॉर्निंग में जब आते हैं ना, हम लोग को ये प्रार्थना करना है कि भगवान हमारे लिए जो सही है, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, जो सही है आप वो करिए मेरे लिए। ये प्रार्थना होना चाहिए, ना कि ये मेरा एक मैं कह सकता जॉब लगा दीजिए भगवान, कैंपसिंग आ रहा है, एक तो कुछ करवा दीजिए कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत डीप लेवल है, धीरे धीरे आप लोग को वो मैच्योरिटी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये सीखना है कि भगवान के ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, है कि नहीं? तो आप जो है टाइम थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन आप सोने प्रभु को थोड़ा बोलिए कि मेरा जो है 2 घंटा मेरे लिए थोड़ा कम हो रहा है, कुछ पॉसिबल है क्या? या आप थोड़ा खुद से टाइम निकालने का कुछ प्रयास कीजिए, क्योंकि 6 बजे आप लोग कितने बजे कॉलेज से आते हैं? 5:30, फ्रेश होते होते 6, फिर प्रसाद पाते हैं कि नहीं? प्रसाद पाते पाते फिर आके तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा इधर उधर करने में 7 तो बज ही आएगा, फिर 9 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा छूट दिया जाता है, हम लोग को भी छूट मिलता था एग्ज़ाम के टाइम में, है ना? तो वही आप कोशिश कीजिए, और एट द बैक ऑफ द हेड आप खाली ये ध्यान रखिए कि इससे दूर ना आ जाए, कैसे भी करके आप बैलेंस कीजिए। आपको 2 दिन ये लग रहा है, आप थोड़ा सोचिए कि मैं सबसे बात कीजिए कि प्रभु मेरा ये इशू आ रहा है, मैं इसको डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा, आप बोलिए मैं कैसे बैलेंस करूँगा। आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप ऐसे बोलेंगे कोई भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगे, है ना? ये चीज़ है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? फ्रैंकली आप लोग पूछो, मैं इसीलिए इसको छोटा रखा, क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे ये सब मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। आप लोग नए नहीं हैं, तब भी कंप्लेन आता था, मैं भी किया था। तो आप लोग पहली बार अगर कोई बोलेगा भी कि पढ़ाई के टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं भी बोला हूँ, मैं भी मैनेज किया था, है ना? तो इसीलिए आप लोग को जो है
कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? हाँ आपको बोला कि हमारे जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, और जो हमें डेस्टिनी से बाहर कुछ मिल सकता, बाहर मिल सकता है, मिल नहीं सकता, तो हम अपना एफर्ट लेके क्यों करें? मतलब डेस्टिनी में अगर लिखा जाए तो अपने आप ही हो जाएगा। जो हम 2 घंटा पढ़ाई करें उसमें हो जाएगा, तो हम क्यों एफर्ट लेके 10 घंटा बैठने की, 10 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा और अपने एफर्ट से भी करें। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना ये क्वेश्चन, ठीक सेम क्वेश्चन मेरे टाइम पे एक ऐसा क्वेश्चन उठा था। इसका आंसर ये है, देखिए अप्रारब्ध कर्म जो है ये आपके मटेरियल लाइफ को फिक्स करता है। मतलब मटेरियल लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है, आपका सर्कमस्टेंस, आप किस फैमिली में, कौन माता पिता मिलेंगे, ये अप्रारब्ध कर्म ठीक करता है, फिक्स करता है। ठीक है। स्पिरिचुअल जो गोल्स हैं, स्पिरिचुअल जो आपका अचीवमेंट्स होंगे, वो ना अप्रारब्ध कर्म से आते हैं ना प्रारब्ध से। आप आज जो फ्री विल यूज़ करके जो आप कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा। स्पिरिचुअलिटी में बोल रहा हूँ, आपको क्या मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि डेस्टिनी में लिखा है तो मैं क्यों 10 घंटा पढ़ाई करूँ? अगर मेरा डेस्टिनी में लिखा कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करके 9 CGPA ला सकता हूँ, तो मैं क्यों 10 घंटा पढ़ाई करूँ? बात यह है कि अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप 9 CGPA लाने के लिए 10 घंटा आपका पढ़ाई ज़रूरी है, तो आप 10 घंटा ही पढ़ाई करेंगे। आपको डेस्टिनी काम वो उतना काम ले लेगा आपसे, वो आपके ऊपर नहीं है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन क्या है स्पिरिचुअलिटी में क्या है, कभी कभी कृष्णा अगर चाहेंगे तो अप्रारब्ध कर्म को भी ठीक कर सकता है, प्रारब्ध को भी ठीक कर सकता है। ये भगवान के पास पावर है। आप हम लोग जो देवी, मैं भी करता था ऐसे, हम लोग बंगाली में काली पूजा बहुत फेमस है। कोई भी देवी देवता को पहले मैं क्या करता था, प्रेयर्स कि हे देवी माँ, इस बार थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो ये भोग चढ़ाऊँगा। पता सब कोई किया है, कोई शर्म की बात नहीं है। देवी देवता लोग क्या करते हैं पता है? आपको मान लीजिए 40 ईयर्स के बाद कुछ अचीवमेंट मिलने वाला था बड़ा, आपको आपका जो प्रारब्ध कर्म है वहाँ कुछ मिलने वाला था 40 ईयर्स के बाद, वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से लेके यहाँ दे देंगे और आप अभी खुश हो जाएंगे, लेकिन तब भुगतने पड़ेंगे। तो उनके हाथ में वो नहीं है कि दे दे, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन भगवान के हाथ में है पूरा ही चेंज करने का। तो इसीलिए देवी देवता से अगर हम मांगते भी हैं कुछ, तो भी वो भक्ति सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे अगर हम मांग रहे हैं कि जैसे गणपति पूजा है, कुछ आप मांग रहे हैं कि हाँ मैं ये मांग रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं वो पाके मैं भगवान की सेवा अच्छे से करना चाहता हूँ। अभी मेरा जो सिचुएशन है या आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए मैं अभी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली जो है, अब देखिए कि भगवान की भक्ति मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। कनेक्ट हो गए, और उसमें देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये जो है बंदा ये अल्टीमेट गोल के बारे में सोच रहा है। ये है। और वही जो आपका क्वेश्चन था कि डेस्टिनी में अगर लिखा रहेगा ना, तो आपसे उतना काम वो करवा लेगा। अब मेरे डेस्टिनी में ये था कि तू मास्टर्स के बाद ही जा पाएगा, मास्टर के पहले तक तो प्रभु जी से यही बातें लड़ाता रहेगा कि तो मुझे ये नहीं मिलेगा पढ़ने का टाइम, वो नहीं पढ़ने का टाइम, है ना। तो लेकिन उसमें मेरा नुकसान ये हुआ कि जो जितना लेंथ मैं ले सकता था फ़ायदा गुरुकुल में रह के, उतना मैं ले नहीं पाया। ये मैं बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं शायद 3-3.5 साल था यहाँ पे। अगर पहले ईयर में ही मैं अगर डिसाइड कर लेता था तो और भी थोड़ा एडवांसमेंट
हो सकता था, ऐसा बोलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? पढ़ाई का तो एक क्वेश्चन एक रहता ही है। सेवा रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सेवा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हैं? हाँ, এখন तो कमी দেওয়া হয়েছে। पीछे प्रभु जी लोग कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग कुछ एक्सपीरियंस या शेयर करना चाहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हार्डशिप आ रहा है या जो भी फर्स्ट सेम में आता है, आप हिचकिचा मत, मतलब ऐसे मत कीजिए। फर्स्ट सेम में वो बहुत क्वेश्चन रहता है, हम लोग का भी रहता था, हम लोग तो खुल्ला पूछते थे, आप लोग को शर्मा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं, एकदम सब ठीक ठाक है, सब एम्पल सा टाइम मिल रहा है, सब बराबर। हम लोग तो मराठी में बहुत बराबर वर्ड बहुत चलता है, कुछ भी बराबर ठीक है, बराबर। तो आप तो खाली आज का जो जिस्ट है मैं एक तरह संक्षेप में बता देता हूँ कि जो है एम्बिशन जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ हाथ में हाथ मिला के चल सकता है, ठीक है। डेस्टिनी जो है अप्रारब्ध कर्म फिक्स है, लेकिन स्पिरिचुअल जो एडवांसमेंट किसका कितना होगा वो किसी का फिक्स नहीं है। आप जितना प्रयास करेंगे उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। हम लोगों को दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल है भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव बढ़े, उनके प्रति जो है प्रेम का संबंध बढ़े, ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए हम लोगों को एक बैलेंस लाइफ लीड करने पड़ेंगे, नहीं तो भूखे पेट हरिनाम नहीं होता। तो एक बैलेंस लाइफ जरूरी है। सब कोई साधु नहीं बन पाएगा, जैसे प्रोफेसर बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स बन पाते हैं, वैसे ही बहुत लिमिटेड बच्चे ही हैं जिनका फिजिकल नेचर ही वैसे होते हैं कि वो सैक्रिफाइस कर पाएँ। और ऐसे सोल्स बहुत रेयर होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे यज्ञ करके पिछले लाइफ में वो लोग आते हैं, तो इसीलिए उनका साइकोफिजिकल नेचर ऐसे बनते हैं, मैक्सिमम लोग का नहीं रहता। ये है। दूसरी चीज़ है, आप ओवर एंडीवर ना करें, एंडीवर करें, एम्बिशन रखना बुरी बात नहीं है, एंडीवर करें, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए ओवर एंडीवर ना करें। उससे क्या होता है, मटेरियल हैंकरिंग बढ़ता है। जो 50 रुपये से आज आप सेटिस्फाइड हैं, उससे आप कल सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आपको फिर 100, 200, 300 भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा अगर ओवर एंडेवर हो जाएगा तो। और ओवर एंडेवर से आता है ग्रीड, फिर आप दूसरों से भी दूसरे का सक्सेस आप नहीं देख पाएंगे, उससे भी वो अरे मेरे को मिल गया, आपको माइक्रोसॉफ्ट का जॉब मिल गया, आपके दोस्त को अगर गूगल का मिल गया, उसको कैसे मिल गया, तो आप थोड़ा आपका खुशी डाउन हो जाएगा। आपको जितना खुशी आपको मिला था